Good morning, everyone. I'm Sayukta from beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. To look beautiful and smart at all times is quest of humans right from the beginning of civilization. Few of the common conditions affecting the look and feel of a person is acne, hyper or hypopigmentation, and even hair loss. Out of these, acne is a big concern, especially for women in their 20s. However, it would be wrong to say that men don't suffer from acne. To many, acne is also known as blemishes, blackheads, whiteheads, pimples, or cysts. It is most common during puberty and adolescence. According to a recent data, almost 80% of people in the age group of 11 to 30 years have acne breakout at least once. Although acne most commonly does not have any serious health concern but is distressing for the sufferer. The faster the issue is diagnosed, more effective will be its treatment. Thus, knowing about acne management from an expert is essential. For this, today we have Dr. Sapna Dangi, a consultant dermatologist and cosmetologist from Jaipur, live with us to educate us more on acne management. Dr. Sapna is a consultant dermatologist at Derma Skin and Hair Clinic, Jaipur. She has done MD Dermatology from JLN Medical College, Ajmer. She has been associated with SMS Medical College and Hospital as a consultant dermatologist for more than 3 years. We are sure with her expertise in dermatology, Dr. Sapna will enlighten us on acne management. A very good morning to you, Dr. Sapna. Hope you're doing good, ma'am. Good morning, very good morning. Doctor, today we are going to talk about acne. As I said in the beginning, acne is one thing we all have gone through at one point of time, and it's really de-stressing. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे acne है क्या, क्यों होता है? Okay, before going to the treatment of the acne, we should know what is acne. एक्ने बेसिकली अपनी जो स्किन में ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड्स क्यूमुलेटिवली वी कॉल इट पाइलोसेबेशियस यूनिट. तो एक्ने इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट यूनिट. Four mechanisms are behind this, like excessive sebum production. There is something hyperproliferation of the epithelium of the hair follicle, and third is the factor aggravating is propionibacterium acnes, that is the bacteria that causes the inflammation. So the excessive sebum production जो होता है वो glands में accumulate हो जाता है और वो burst हो जाती हैं, और जो substance होते हैं वो स्किन की एक लेयर है डर्मिस, उसमें accumulate हो जाते हैं और inflammation cause करते हैं. That is called acne. जो commonly देखने को मिलता है, एक्ने डिफरेंट टाइप हो सकते हैं. एक इन्फ्लेमेटरी रीजंस होते हैं जैसे कि नोड्यूल्स, पस्ट्यूल्स, बट द बेसिक रीजन होता है दैट इज कॉमेडोन्स, जिनको अपन बोलते हैं ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स. दैट इज द बेसिक रीजन. ओके. बहुत आम तौर पर कहा जाता है कि टीन्स में एक्ने बहुत आम होते हैं क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है. इसके अलावा बहुत स्ट्रेस में अगर कोई है या बहुत ऑयली स्किन है और सही से मेंटेन नहीं किया है, स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो किया, तो भी कहते हैं एक्ने होता है. बहुत सारे रीजंस होते हैं. अगर हम कॉजेस की बात करें डॉक्टर, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एक्ने? देखो, ये कहना कि सिर्फ टीन्स में एक्ने होते हैं, दैट्स रॉन्ग. टू टाइप्स ऑफ एक्ने होते हैं. वन इज एडोलेसेंस एज में होते हैं. सेकंड आजकल जो कॉमनली देखने को मिलता है एडल्ट ऑनसेट एक्ने. जो एडोलेसेंस में एक्ने होते हैं वो मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं. नॉर्मली मेल्स जो ओपीडी में अटेंड करने वाले होते हैं उनमें मेल्स की नंबर्स कम है बिकॉज इट इज नेग्लेक्टेड. बेसिकली 2/3 ऑफ द मैन इससे अफेक्ट होते हैं. और जो अडल्ट ऑनसेट एक्ने हैं वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं. जो मोर देन 25 ईयर की एज में होते हैं उनको बोलते हैं अपन एडल्ट ऑनसेट एक्ने, और बिफोर 25 ईयर होते हैं दैट इज एडोलेसेंट एक्ने. तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं इसके. फर्स्ट तो जो होता है वो है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, कि आपको फर्स्ट वी शुड टेक द डिटेल्ड हिस्ट्री टू द पेशेंट कि आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, उनकी मदर को या उनकी एज में रहा होगा. दूसरा, पेशेंट कोई सर्टेन मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है, सच एज कई बार एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस होती हैं, वो एक्ने कॉज करती हैं. पेशेंट कोई टॉपिकल ड्रग तो नहीं लगा रहा है, लाइक स्टीरॉइड्स होते हैं, और समथिंग लाइक मेकअप वगैरह, उसमें केमिकल्स होते हैं.
सर्टेन ऑयल्स जो होते हैं वो एक्ने कॉज करते हैं। थर्ड इज स्ट्रेस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ डेज फॉर द एक्ने। Excessive sun exposure also may cause the acne. In adult onset acne, the most important reason is the hormonal imbalance. जो फीमेल्स में एज ए प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर देखने को मिलता है, मेंस में ये होता है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि आपके पीरियड से पहले आपको एक्ने का ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर। तो अपने को उनके हार्मोनल स्टडी बहुत मस्ट है, लाइक FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये सब अपने को करवानी होती है टू नो द रूट कॉज ऑफ द एक्ने। राइट, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द रूट कॉज ऑफ द एक्ने। इसके लिए जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाए, स्पेशलिस्ट के पास जाए, इस केस में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, ताकि पता चल सके कि कॉज क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली दे कैन टेल अस द ट्रीटमेंट of that. And doctor, we would also like to understand, many times people say गर्मी का मौसम आया है तो हमें एक्ने ज्यादा हो रहे हैं, या मॉनसून या विंटर्स है, या मॉनसून में कई बार ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो एक्ने आ रहे हैं। आर दीज एक्ने एनीवे एसोसिएटेड विद एनी सीजन और अकर्स थ्रू आउट द ईयर? क्योंकि कई बार हीट की वजह से भी, आपने भी कहा एक्सेसिव हीट की वजह से भी एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, तो सीजन के साथ या हीट एंड कोल्ड और ह्यूमिडिटी के साथ इसका क्या एसोसिएशन? एज सच तो वेदर का कुछ एसोसिएशन होता नहीं है एक्ने से, बट जैसे ह्यूमिडिटी वाला वेदर है तो उसमें क्या होता है कि सीबम प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, so that it will lead to the accumulation of the sebum in the sebaceous glands that will also cause the acne. एक्ने ब्रेकआउट एक्सेसिव हीट और ह्यूमिडिटी वाला पीरियड है उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं। डाइटरी फैक्टर्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो डाइट्स हैं वो एक्ने कॉज करती हैं, like dairy products, cheese, chocolates, these also cause acne. Okay. We often say that prevention is better than cure. तो एक्ने के केस में क्या ऐसा कुछ है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्ने ब्रेकआउट्स? बिल्कुल, एक्ने ब्रेकआउट्स प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट तो आपको डाइट कंट्रोल मस्ट है। सेकंड, आपको हार्मोनल इवैल्यूएशन आपका टाइम टू टाइम करवाना चाहिए कि एडल्ट ऑनसेट एक्ने में फर्स्ट वन थिंग इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी दूसरी चीजें भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडल्ट ऑनसेट एक्ने में, तो वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट and certain medications also prevent the acne such as salicylic acid, glycolic acid containing face wash you should use, so the excessive oil production is decreased and there will be less chances of acne. ओके, डाइट को लेके आपने कहा, और उससे पहले आपने ये भी कहा कि चॉकलेट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स इनको अवॉइड करना चाहिए। और भी किस तरह से हम अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं टू प्रिवेंट एक्ने ए, और अगर एक्ने है तो उसे कंट्रोल करने में भी हमारी डाइट किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है डॉक्टर? डाइट का एक तो हेल्दी बैलेंस डाइट इज मस्ट। जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब अवॉइड करनी चाहिए अगर प्रिवेंशन फॉर एक्ने एंड बोथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्ने। वी शुड नो डेयरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड that contain different type of preservatives also, they also can cause acne. Sometimes milk products like cheese, paneer itself, milk also can cause acne, so we should reduce the amount of these products in our diet. Right. And anything that we can include as fruits or vegetables, etc., that can help us have a good glowing skin? High fiber diet we should use to decrease the acne. ओके, तो हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, और जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। आपने कहा कि एडल्ट एक्ने काफी अब कॉमन हो गया है, स्पेशली इन फीमेल्स। तो ऐसे में स्पेसिफिकली फीमेल्स की अगर हम बात करें, या एडल्ट एक्ने की अगर हम बात करें, तो उस केस में क्या करना चाहिए? व्हाट वी कैन डू टू, अगेन लाइक यू सेड, इट्स इम्पोर्टेंट टू गो फॉर हार्मोन टेस्ट इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स टू नो कि कोई इनबैलेंस तो नहीं है, और है तो फिर डॉक्टर से हम एडवाइस लें। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली एडल्ट एक्ने के केस में? एडल्ट ऑनसेट एक्ने, फर्स्ट तो अपने को ये देखना है कि एक्ने का जो प्रेजेंटेशन है एडल्ट ऑनसेट में वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है।
पेशेंट आएगा कि उसको जॉ लाइन पे एक्ने ज्यादा हो रहे हैं, मतलब लोअर थर्ड ऑफ द फेस पे एक्ने ऑनसेट ज्यादा होता है। ट्रंक नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होता है, एडोलेसेंट एक्ने में ट्रंक भी इन्वॉल्व होता है। दूसरा ये देखना है कि एक्ने के साथ कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करते हैं, लाइक हिर्सुटिज्म, द फीमेल्स हैविंग हेयर ऑन द मेल बियर्ड एरियाज। तो दिस इज अ क्लू कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हार्मोनल इम्बैलेंस. So we should go for the hormonal evaluation. Then USG abdomen for the polycystic ovarian disease. So we should refer the patient to the endocrinologist also, and some other drugs like insulin sensitizing drugs hain, to decrease the obesity we should use, and certain anti-androgen hormone drugs that we should use. कि पेशेंट पे मेनली ये जो होता है एंड्रोजन हार्मोन की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। तो सर्टेन ड्रग्स आती हैं सच एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर द चाइल्ड, वी शुड यूज सर्टेन अदर लाइक साइप्रोटेरोन एसिटेट्स, पानोन, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी एंड्रोजन्स we should use in such type of patients. राइट। जब एक्ने होते हैं तो डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि फेस पे कुछ है, और इसलिए सबसे पहले जो है होम रेमेडीज या जो कुछ भी हमारे पास ऑनलाइन या ओवर द काउंटर जो कुछ भी अवेलेबल है, हम वो करने की कोशिश करते हैं। वी वुड लाइक टू अप्लाई समथिंग ऑन दोज एक्ने, एंड मेनी पीपल दे कीप ऑन वॉशिंग देयर फेस बार बार कि जो ऑयल है वो निकल जाए और एक्ने ना हो। कई लोग बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को। तो कुछ ऐसे डूज या डोंट्स हैं, स्पेशली डोंट्स जो हमें नहीं करना है। कई लोग स्पेशली टीन्स में होता है, एक्ने आ गया है, हमको कहीं पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, बट लाइक टू स्क्वीज इट आउट, वी लाइक टू पॉप इट आउट। तो ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन बाद में जब वो एज स्कार हमारे फेस पे रह जाते हैं, उसके निशान, तो हमें लगता है कि ये सब क्यों किया था। तो एनी डोंट्स स्पेसिफिकली फॉर एक्ने प्रोन पीपल? स्पेशली जो होम रेमेडीज में पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि वी आर अप्लाइंग मुल्तानी मिट्टी, and we should not apply it because it will lead to the closure of the pores, so it will further increase the sebum accumulation and it will lead to breakout of the acne. So first we should not touch with hand because it will lead to the more inflammation, more scarring will be there. अगर हाथ से टच करेंगे तो ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, इट विल चेंज इनटू द नोड्यूल पस्ट्यूल्स और जो कि स्कार्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है कि अवॉइड एक्सेसिव मेकअप। इफ यू आर डूइंग द मेकअप वी शुड वॉश इट प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू द बेड, सो it will clean the face and it will not clog the pores, so we should do it regularly. राइट। तो ये कुछ बातों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट यू मोस्टली रिकमेंड फॉर एक्ने, डॉक्टर? First line of the treatment for the acne is topical treatment. Acne treatment depends upon the lesion the patient is having. If the patient is having non-inflammatory lesions like some comedons are only there, we should go for topical treatment. There is a big basket of the treatment, that is topical treatment is topical retinoids are there, like first generation, second generation, tretinoin, adapalene. Other antibiotics are there like clindamycin, some azelaic acid that is both antibacterial and anti-inflammatory we should use. अब पेशेंट को अपने को सही जो गाइडेंस है उसको कि how to use it, that is very important. Retinoid is the very important dramatic drug to prevent the acne and to treat the acne both. तो पेशेंट को अपने को एजुकेट करना है कि we should use it, we should start it with the less time, then slowly increase the time, because इनके जो unwanted side effects हैं like dryness है, skin peeling है, that occurs. तो पेशेंट जो है इसको compliance पेशेंट का कम हो जाता है, वो इसको यूज करना बंद कर देता है। तो अपने को प्रॉपर उसको एजुकेट करना मस्ट है कि आपको हाउ टू यूज इट। सेकंड ड्रग्स आती हैं, oral medications are there, oral retinoids, oral antibiotics, and in adult onset acne some hormonal drugs are there, some anti-androgens are there. And to prevent the complications of the acne such as hyperpigmentation, scarring, acne में जो patients होते हैं उनमें two types of scar होते हैं, one is depressed scar होते हैं
जिनको हम बोलते हैं कि आइस पिक स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं, उनका भी ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। सम टॉपिकल मेडिकेशंस हैं, पीलिंग है आजकल, डर्मा रोलर, सम may need the laser treatment for the acne scars. And for the pigmentation, different kind of peeling agents are there, such as glycolic acid, salicylic acid we use for these complications. ओके डॉक्टर, आपने एक तो बताया कि होम रेमेडीज आप नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज वी एंड अप वर्सनिंग द कंडीशन। दूसरा ये भी है कि कई बार ओवर द काउंटर जाके भी क्रीम्स आमतौर पर जो सफरर्स हैं वो ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या है, आधे अप्लाइंग स्टेरॉइड्स, कैसे यूज करना है, डोसेज नहीं पता, but just for the sake of it they'll just go panic and buy a cream over the counter and start applying it। और कई बार इससे जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन, दोस्तों को हुआ था उन्होंने क्या किया, फैमिली मेंबर्स को हुआ था उन्होंने जो क्रीम ली वो हमने भी लगा ली, या फिर आजकल ऑनलाइन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो सब गैदर करके they start experimenting on their skin। how dangerous these practices can be। पेशेंट की जो सेल्फ मेडिकेशन लेने की यहाँ जो एक ट्रेंड है वो बहुत ही डेंजरस है फेस के लिए, बोथ एक्ने, क्योंकि जो स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स हैं वो इटसेल्फ एक्ने कॉज करती हैं, प्लस वो स्किन एट्रोफी भी कॉज करती है। पेशेंट को हिस्ट्री देता है पेशेंट की, जब तक हमने लगाया बहुत अच्छा था, लेकिन बंद करते ही चेहरा काला हो रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट हैपेंस विद द स्टीरॉइड्स। तो पेशेंट को एक तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन यूज नहीं करना है, ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, और स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स कभी भी फेस पे यूज नहीं करनी है विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, बिकॉज इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टीरॉइड क्रीम्स के, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन है, स्किन एट्रोफी है, एक्ने ब्रेकआउट्स बढ़ जाते हैं। जो स्टीरॉइड, वन टर्म इज स्टीरॉइड एक्ने, दैट इज आल्सो नोन एज मोनोमॉर्फिक एक्ने, मतलब ओनली देर आर सिंगल टाइप ऑफ लीजन्स होते हैं पेशेंट में, वो सिर्फ स्टीरॉइड की वजह से होते हैं। और स्टीरॉइड डिपेंडेंस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, कि पेशेंट जब लॉन्ग टर्म तक स्टीरॉइड यूज करता है तो उसका विड्रॉल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है उसका विड्रॉल, बिकॉज इट विल लीड टू ईचिंग, बर्निंग, फोटोसेंसिटिविटी। तो ये बहुत ही सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस टू द पेशेंट एंड बोथ सोसाइटी। Okay, so it's always advisable, it's always good to go and consult the doctor as soon as you see some, problem or lesions appearing on your skin. As we said in the beginning as well, the faster the issue is diagnosed, more effective will be its treatment. और इशू कैसे डायग्नोस होगा, जब हम किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सो व्यूअर्स, प्लीज बी सुपर careful about it. If you have acne, please don't self-medicate. Please don't do home remedies. Don't do over-the-counter medication. Go and consult the right person. एक्ने प्रोन जिनकी स्किन होती है वो अपनी स्किन केयर रूटीन को लेकर भी डॉक्टर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दे डोंट नो वेदर टू यूज मॉइस्चराइजर और नॉट, बिकॉज दे नो फॉर श्योर दैट एक्सेसिव सीबम इज डेफिनेटली causing the acne। Again, sunscreen को लेकर भी बहुत डाउट रहता है कि सनस्क्रीन यूज करना है नहीं करना है, वो उनकी स्किन को और ज्यादा स्वेटी ऑयली बना रहा है, या फेस वॉश करना है, कितना करना है, कब तक करना है। So we would like to you to shed some light over how the skin care routine should be, especially for acne prone skin। Acne manage to prevent the acne breakouts, the person जिनकी oily skin है तो उनको जो सम फेस वॉशेस आते हैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश आते हैं, जो कि आपका सिक्रीशन, ऑयल सिक्रीशन फेस का कम करते हैं। तो लेकिन ये एक मिथ है कि वी शुड नॉट यूज द मॉइस्चराइजर। मार्केट में बहुत अच्छे नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स आर देयर, जो कि आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी रखते हैं, बट दे आर नॉन कॉमेडोजेनिक, तो एक्ने को प्रिवेंट करते हैं। We should use properly sunscreen, we should also use, क्योंकि excessive sun exposure also may cause acne। तो patient को first we should use the moisturizer, then regular use of the sunscreen is also must, and amount of sunscreen is very important। sometimes patient बहुत ही कम sunscreen use करता है, उसको लगता है कि हाँ बस एक thin layer, but सनस्क्रीन की एक प्रॉपर लेयर
यूज करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो एक्ने के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक हाइपर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल। तो रेगुलर यूज ऑफ सनस्क्रीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सनस्क्रीन को लेकर थोड़ी और बात आपसे डॉक्टर करना चाहेंगे। यू सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन, यू नो, राइट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन। और मार्केट में अगेन स्किन टाइप के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मुलेशन सनस्क्रीन के हैं। तो सबसे पहला तो सनस्क्रीन खरीदते वक्त क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी बॉक्स, यू नो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यूवीए, यूवीबी, पीए प्लस प्लस प्लस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ लेमन कई बार समझ में नहीं आती। तो हम कौन सी चीजों का ध्यान रखें, स्पेशली अगर हमारी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, सनस्क्रीन खरीदते वक्त? अगर ऑयली स्किन है तो स्पेशली जो सनस्क्रीन मार्केट में आ रहे हैं वो यूवी बी प्रिवेंटिव, यूवी ए प्रोटेक्टिव एंड आजकल जो मार्केट में एक और है इंफ्रारेड प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन आर आल्सो देयर। तो जो पेशेंट जो वुमेन है जिनका बाहर जाने का आउटडोर एक्टिविटीज कम है, तो उनको बेसिकली जैसे मोबाइल की लाइट है, घर में रहने वाली किसी भी तरह की लाइट है, उससे प्रोटेक्शन के लिए आईआर सनस्क्रीन, आईआर रेटिंग इज आल्सो देयर, इंफ्रारेड, वो सनस्क्रीन यूज करने चाहिए। और जो पेशेंट के आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस बोथ यूवी ए एंड यूवी बी प्रोटेक्टिव। तो जो एसपीएफ टर्म है दैट इज फॉर द यूवी बी प्रोटेक्शन एंड द सम अदर फैक्टर पीए फैक्टर दैट इज फॉर द यूवी ए प्रोटेक्शन। तो वी शुड यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए। एसपीएफ कितना नॉर्मली, मतलब एक जनरल पर्सन का जिसका थोड़ा बहुत बाहर जाना भी होता है, सन एक्सपोजर है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर, साथ ही इस इंडियन कंडीशन में वो रह रहा है, तो ऐसे में एसपीएफ क्या सही होता है लेना? एसपीएफ एक्चुअली सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर फॉर यूवीबी प्रोटेक्शन, तो एसपीएफ 30 to 50 if the patient is moderately sun exposed, so SPF 30 to 50 is sufficient. ओके। एंड सनस्क्रीन को लेकर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि रीएप्लिकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और अगर बाहर जा रहे हैं तो उससे थोड़ा पहले लगाना है, तो इसके बारे में भी थोड़ी आपसे जानकारी चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर बाहर जा रहे हैं तो इट टेक्स 20 मिनट्स टू फॉर एक्शन सनस्क्रीन, तो आपको 20 से 25 मिनट पहले लगाना है। प्लस नॉर्मली जो सनस्क्रीन का वर्क करने का टाइम इट इज 3 to 4 hours. So if you are going for the long time, then you should apply the sunscreen after 3 to 4 hours. जो मेन टाइम होता है सन रेज का होता है 11 to 3 PM. तो जो मेन इसी टाइम में आपको सनस्क्रीन यूज करना मस्ट है। Okay. And many times, especially, you know, people who have acne prone skin, they complain that when they apply sunscreen, they sweat a lot or their skin look very dull or patchy, or it's quite painful for them because they have already acne and pimples. So it's quite painful for them to apply sunscreen. So they completely, you know, omit sunscreen from their skincare routine. तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इफ पेशेंट कांट अप्लाई सनस्क्रीन, अगर उनको लगता है कि उनके एक्ने बढ़ रहे हैं, तो सम जेल बेस्ड सनस्क्रीन, सम नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन आर आल्सो देयर। तो उनको प्रॉपर सर्च करके डॉक्टर से कंसल्ट करके वो ही सनस्क्रीन यूज करने चाहिए। कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं दैट आल्सो कंटेन मेडिकेटेड sunscreens like SPF containing moisturizers are also there. So उन पेशेंट्स को डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी टाइप के सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर यूज करनी चाहिए। Right, and the fact is that we need to apply moisturizer, sunscreen regularly, daily, throughout our lives. तो इसलिए अगर हम पहले ही जाके dermatologist से consult कर ले तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी to choose the right kind of moisturizer and sunscreen. And डॉक्टर, आपने फेस वॉश का भी जिक्र किया कि ऑयली स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड और दूसरे तमाम तरह के फॉर्मुलेशंस, क्लिंजर या फेस वॉश अवेलेबल है। लेकिन कई बार, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, लोगों को लगता है कि हमारी ऑयली स्किन है, इस वजह से एक्ने आता है, और वो बार बार अपनी स्किन को क्लेंजर या फेस वॉश से धोते हैं। फेस वॉश या क्लेंजर कितना यूज करना चाहिए एक दिन में, कितना ओके है, और क्या बार बार यूज करने से कुछ फायदा होता है या नुकसान करता है ये? देखो, बार बार यूज करने से, सनस्क्रीन यूज करने से आपके फेस पे ड्राइनेस आएगी, पीलिंग होगी एंड यू विल नॉट एबल टू अप्लाई द मेडिकेशंस प्रॉपरली। तो आपको एटलीस्ट 2 times फेस वॉश करना चाहिए। और पेशेंट
अपनी ड्राइनेस के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहिए कि बार बार फेस वॉश करने से ड्राइनेस नहीं आई, उतना ही वॉश करें। जो मिनिमल है वो 2 टाइम्स तो आपको वॉश करना ही चाहिए टू रिमूव द एक्सेसिव डर्ट ग्रीस। 2 टाइम्स इज मस्ट Mhm. The time is sufficient. 2 time is must and 2 time with the is face wash. sufficient. Otherwise, Right. you can wash with the plain water also. Okay, right. And we would like to talk about acne scars now, post acne scars. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। acne एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो जो scars, जो धब्बे, जो निशान छोड़ जाता है, वो और बड़ी समस्या लगती है। तो उससे पहले तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि scars हमें हो ही ना, और अगर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट है? देखो स्कार्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी एक्ने जो होते हैं पेशेंट को, लाइक पस्चूल्स, नोड्यूल्स, ये सब एक्ने जो होते हैं ये स्कार्स छोड़ते हैं। तो बेसिकली तो प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेना नोड्यूल्स का, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एडाप्लिन कंटेनिंग मेडिकेशंस होती हैं, ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं, दे आल्सो हैव वेरी मच रोल इन प्रिवेंटिंग द स्कार्स। और पेशेंट को जब एक बार स्कार हो जाते हैं तो स्कार्स का ट्रीटमेंट जो है वो स्कार के टाइप पे डिपेंड करता है। लाइक डिप्रेस स्कार, लाइक आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कार्स आर देयर। So for the ice pick scars, there are TCA cross-like treatments. Some peeling agents are also there for prevention of the scar. Nowadays, important role of PRP therapy with derma roller. It is also having very important role in the scar management. So PRP, there are growth factors that will modulate the collagen remodeling that will lead to the scar management. Certain type of the scars are also treated by the laser treatment. CO2 laser is very important in the treatment of the scars. For hypertrophic scars, there are intralesional steroid injections are there. Certain type of other treatment modalities are also there. Right. कई बार स्पेशली जो एक्ने प्रोन लोग हैं, स्पेशली फीमेल्स, दिल गो फॉर पार्लर ट्रीटमेंट्स, और कई बार पार्लर में दिल जस्ट स्क्वीज आउट द acne, or prick the acnes with whatever tools they have, इस तरह के वो क्लेम करते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, फेशियल्स एक्सेट्रा है जो एक्ने को ठीक करेगा, कम करेगा, बट मेनी टाइम्स उनके बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो लोग कराते हैं, what do you suggest? What's your take on that? If the patient goes to parlor and parlor में कि भाई आपका हम कुछ ऐसा केमिकल यूज करेंगे, ये एंटी एक्ने ट्रीटमेंट है, तो वो मुझे ये लगता है कि containing creams for the temporary glow to the patient, because it will reduce the hyperpigmentation, but to the hyperpigmentation of the face. And if they are touching the acne, कि हम इसको स्क्वीज कर देते हैं तो इट विल ऑल्सो लीड टू स्कार। तो पार्लर में एक्ने ट्रीटमेंट से बचना चाहिए एंड प्रॉपरली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। Right. These days, people are using a lot of products. Market is full of skincare products. और लोगों के पास भी कई बार तो लोगों के पास बैग भर भर के सामान होता है कि ये मेरा डेली skincare routine है. They have n number of products and they keep on experimenting with their products. आज एक product use किया, एक महीने बाद एक नए influencer ने एक दूसरा product recommend किया, they'll go and directly switch to that product. ये जो हमारा खूब सारे products को लेके जो हमारा एक obsession है, या लगातार अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का एक ऑब्सेशन है, ये क्या डेंजरस है हमारी स्किन के लिए? बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगी कि स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर skin. It's your skin, it's your duty to protect your own skin, so stop experimenting. Always consult to your doctor, take advice for the treatment that suits to your skin. Like patient if have oily skin, there are different type of face washes. For the dry skin, the patient should use cleansing agents, not harsh type of face washes, like cetyl alcohol containing face wash, जो कि फेस को ड्राई नहीं करते हैं। तो आपको खुद को एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए स्किन के साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए।
एग्जैक्टली और आपने बहुत ही एक सिंपल स्किन केयर रूटीन भी बताया. यू नीड टू यूज अ क्लेंजर, अ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन रेगुलरली. रात में क्या हम कर सकते हैं, मतलब डे की स्टार्टिंग तो हम इससे कर सकते हैं. देन यू सेड कि सनस्क्रीन हमें रीअप्लाई भी करना है, बट बिफोर गोइंग टू बेड व्हाट शुड बी आवर स्किन केयर रूटीन लाइक? Before going to bed, first wash your face with either cleanser or other glycolic acid, salicylic acid containing face wash. Patient is having oily skin. और अगर पेशेंट की ऑयली स्किन है तो उसको सैलिसिलिक एसिड जेल्स आर आल्सो देयर, दे शुड यूज, जो कि एक्ने को प्रिवेंट करते हैं. और पेशेंट की अगर ड्राई स्किन है तो दे शुड यूज नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स बिफोर गोइंग टू द बेड. Right. So these things can be done before going to the bed. Many times, हम लोग इससे पहले होम रेमेडीज पर बात कर रहे थे, ओवर द काउंटर मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट पर बात कर रहे थे. होम रेमेडीज में जैसा आपने एक चीज कही कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स important to have a very balanced diet full of fiber, etc. What people do, many people, they won't eat those things. They'll like to apply it on their skin. I mean, they love applying fruits on their skin, fruit pulp, their zest, everything on their skin. तो एक तो आपने कहा मुल्तानी मिट्टी या दूसरे जो प्रोडक्ट्स जो हम होम रेमेडीज में यूज करते हैं, दोज आर नॉट वेरी गुड फॉर आवर स्किन. बट अगेन जो हम खा रहे हैं उसको हमारी स्किन पे लगाने का जो एक टेंडेंसी है, हाउ गुड और बैड दैट इज? Doctor, are you there with us? Yes, doctor. बेसिकली जो फ्रूट्स हैं उनमें अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स आते हैं. वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट हम हैं वो भी अंडर गाइडेंस वो एज ए पीलिंग एजेंट यूज करते हैं. बट अगर आप रो मटेरियल यूज करेंगे, रो फ्रूट्स यूज करेंगे, तो इट कैन बर्न टू योर स्किन ऑल्सो. वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में लगा रहे हैं, तो इट एक्ट्स एज ए पीलिंग एजेंट. बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में लग गया तो इट विल peel the skin excessively, and further it will burn the skin. It can burn the skin. It can lead to hyperpigmentation in the skin if the person is going into the sunlight. तो अगर आप फ्रूट्स को खाने में ज्यादा बिलीव करें कि बजाय इसके कि आप स्किन पे लगाएं. Exactly. So fruits are there to eat. Please eat them in plenty. आशा सिंह है हमारे साथ. डॉक्टर पूछ रही हैं, क्या एक्ने लाइफ टाइम तक रहता है? नहीं, एक्ने डिपेंड करता है कि आपके ऑनसेट किस एज में हुआ है. अगर एडोलेसेंट एक्ने है तो अप टू 30s इट विल गो. बट अगर आपके अडल्ट ऑनसेट एक्ने हुए हैं मोर देन 25 ईयर इट इज अकरिंग, then it will remain for the 40s, or it depends upon the hormonal imbalance. Okay, right. And डॉक्टर विटामिन सी को लेकर भी आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस है. वी नो दैट विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, राइट? तो विटामिन सी खाना एक गुड ऑप्शन है. बट देन पीपल आर आल्सो अवेयर दैट विटामिन सी सीरम्स आर अवेलेबल एंड दे आर गुड फॉर स्किन. सो स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए हाउ डज दिस विटामिन सी एक्ट्स? Vitamin C is basically antioxidant in nature. It prevents our skin from the free radicals. Nowadays we are using so much junk food, so much high glycemic index food. It will increase the inflammation in our body, further lead to generation of the free radicals in our body. So vitamin C is a strong antioxidant जो कि अपनी बॉडी को, स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है. तो वी शुड यूज, वी increase the use of vitamin C in our diet, and topical vitamin C also we can use. Okay. It is good for skin. All right, fair enough. We have Nisha Malhotra asking, मैम मेरे लिप्स के पास ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो क्या ये बिना ट्रीटमेंट के होम रेमेडी से ठीक हो सकता है? एक और होम रेमेडी से रिलेटेड क्वेश्चन. देखो, ब्लैक स्पॉट्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. First we should see the disease.
then we should go for the cause of the disease. Then the treatment will depend on the cause of the disease. और इसके लिए होम रेमेडी वर्क नहीं करेगा, होम रेमेडीज डॉक्टर के वर्क पास नहीं ही जाना करेगा, पड़ेगा। बिल्कुल। Right. Many times in our country, we have seen that, and we see that quite often, that people with specifically with skin-related problems, they'll either go to the chemist for over-the-counter treatment, do home remedies, ask their family or friend, लेकिन डॉक्टर के पास हम सबसे आखिरी में जाते हैं। तो ऐसे में जब बहुत सारे पेशेंट्स, आई एम श्योर आपके पास भी डॉक्टर आते होंगे, जो आपको लगता है कि अगर पहले आए होते तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता। तो क्या उन पेशेंट्स को आप कहते हैं, या हमारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो अभी भी होम रेमेडी या दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं स्किन को ठीक करने के लिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पेशेंट हमारे पास एंड में आते हैं कि हमने उस मेडिकल से ये लिया, मेरी फ्रेंड ने बताया कि आप फेस पे ये लगा लो, बट उन पेशेंट्स को वो एक्सेसिव स्टीरॉयड एप्लीकेशन करते हैं पेशेंट को, और जब डर्मेटोलॉजिस्ट मेडिकेशंस देता है, स्टीरॉयड विड्रॉल हो जाता है, तो वो थोड़े टाइम के बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से चेहरा काला हो गया, चेहरे पे बाल आ गए। तो फर्स्ट जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो ये कि आपको 10 डेज कुछ भी नहीं लगाना है। आपको देखना है कि आप जो लगा रहे हो उसको विड्रॉल करने से आपके फेस पे क्या हो रहा है। तो पेशेंट को फर्स्ट 10 डेज, इफ द पेशेंट इज अप्लाइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन वी शुड गिव ओनली मॉइस्चराइजर टू द पेशेंट, ताकि उसकी जो पहले से यूज कर रहा है उसको विड्रॉ करने के बाद जो ड्राइनेस है, जो पिगमेंटेशन है, तो दे विल नॉट ब्लेम द डॉक्टर। तो ये बोलते हैं कि फर्स्ट यू शुड गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर कि आपकी स्किन में एग्जैक्टली। तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, उससे पहले ही आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल। हमारे साथ पलक दुबे हैं, पूछ रही हैं, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माय बेबी और टॉडलर फ्रॉम द सन? क्या बेबीज एंड टॉडलर को सनस्क्रीन लगाया जा सकता है? Some physical sunscreens are there if patient is doing much outdoor activities. So after 12 year, physical sunscreen can be used, but before 12 year, we should not use the sunscreen. Okay. नेहा चौधरी पूछ रही हैं, हाउ टू डील विद ड्राई स्किन दैट्स पीलिंग एंड सनबर्न? For the peeling, you should use the moisturizer regularly, and for sunburn, to prevent the sunburn, you should use sunscreen before going to the sun exposure. 20 minutes before, at least you should use the sunscreen. Broad spectrum sunscreen आपको लगाना है 20 minutes before and reapply करना है 3 to 4 hours after. Okay. And doctor, before we wind up this session, any take-home message for our viewers? The most important message is stop doing experiment with your skin. Always consult your dermatologist before any complication occur with your skin. So first, if you have any skin problem, you should consult your dermatologist. Right. तो अगर कोई दिक्कत है तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। होम रेमेडी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, दोस्तों ने जो किया, फैमिली मेंबर्स ने जो किया, उस पर नहीं रिलाई करना है। प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। होता यही है कि हम ये सब करने में इतना वक्त जाया कर देते हैं, अपनी स्किन को और इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत लेंदी हो चुका होता है। तो प्लीज अपनी एनर्जी बचाइए, टाइम बचाइए, मनी बचाइए, एंड गो टू द राइट पर्सन फॉर एडवाइस। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सपना for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, I'm sure, and it was great to hear you. Thank you so very much. And we really look forward for many more such sessions for our viewers in coming times with you. Thank you once again. Thank you. Viewers, thank you for your participation in today's session. Thank you so very much, all of you. Have a great day ahead and stay beautiful and stay spotless. Stay with us. Goodbye.